I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. Our today's topic is Future Perfect Continuous Tense. At the end of the lesson, you will be able to know what is Future Perfect Continuous Tense, how and when to use this tense, how to use time expression in it, what are its mechanics, and how to create affirmative, negative, and interrogative sentences. So let's begin it. This tense is used to show an action that will continue up until a certain period of time in the future. ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए जो कि मुस्तकबिल में किसी मखसूस वक्त में जारी रहेगा. या फिर this tense is often used with verbs like learn, lie, live, reign, sit, wait, and work, etc., which naturally suggest continuity. To say that what is in progress now will be in the progress in the future. या भी ये टेंस इन वर्ब्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जो कि कंटिन्यूटी जाहिर करते हैं. ये बताते हैं कि जो काम अभी इस वक्त जारी है वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा. जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, By this time next week, I shall have been working on this project for a year. आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन करें कि आप कहते हैं कि अगले हफ्ते इस वक्त इस प्रोजेक्ट में मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा. मतलब अभी भी मैं इस पे काम कर रहा हूं और जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें मेरा 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये काम जारी रहेगा. मजीद ये like the future perfect, it is normally used with a time expression beginning with by. जैसे कि by this week, by next month, by January, etc. जैसे future perfect में हमने इस्तेमाल किया था time expression जो कि by से शुरू होते हैं, वही time expressions हम इस टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, by this time next week, I shall have been working on this project for a year. या फिर by the end of this month, he will have been living with us for 6 months. इन दोनों में ये काम अभी भी जारी है और ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा. टाइम एक्सप्रेशन इसलिए हम लगाते हैं ताकि वो टाइम हम जाहिर कर सके कि इस वक्त तक इतना ड्यूरेशन, इतना पीरियड मुकम्मल हो जाएगा. Furthermore, the mechanics of this tense. What are the requirements to form any sentence? First of all, auxiliary verbs. Shall have been and will have been. ये दो auxiliary verbs हैं इसके. Subjects I and we ये इस्तेमाल होगा shall have been के साथ, और he, she, it, they, you, और इसके साथ आप I और we भी इस्तेमाल कर सकते हैं will have been के साथ. Form of verb, first form of verb plus ing. जैसे working. Time expression जो by से शुरू होते हैं, by the next week, by December, इस तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's form some affirmative sentences now. सादे जुमले बनाते हैं. By the end of this year, he will have been teaching for 30 years. तो सबसे पहले आपने टाइम एक्सप्रेशन लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और आखिर में ड्यूरेशन आप दे सकते हैं, पीरियड. इसी तरीके से by December, he will have been training horses for 5 years. इसमें आप गौर करें कि हमने ऑब्जेक्ट भी लगाया है. टाइम एक्सप्रेशन सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉर्सेस, और ड्यूरेशन आप दे सकते हैं. लेट्स कन्वर्ट दीज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम इनकार करते हैं, नॉट इस्तेमाल करते हैं. By the end of this year, he will not have been teaching for 30 years.
नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन लगा दिया, सब्जेक्ट विल, उसके बाद नॉट हैव बीन, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे आपने डिवाइड कर दिया। पहले विल लगाना है और विल के फौरन बाद नॉट लगाना है। फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ड्यूरेशन। इसी तरीके से बाय डिसम्बर ही विल नॉट हैव बीन ट्रेनिंग हॉर्सेस फॉर 5 years। टाइम एक्सप्रेशन subject, will, not, have been, first form of verb plus ing, object or duration. To convert these into interrogative sentences, सवालिया question कैसे बनाएंगे? By the end of this year, will he have been teaching for 30 years? टाइम एक्सप्रेशन वहीं पे रहेगा। आपने will को शुरू में लाना है और will के बाद सब्जेक्ट, फिर have been, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ड्यूरेशन। इसी तरीके से by December, will he have been training horses for 5 years? टाइम एक्सप्रेशन will, subject, have been, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट, ड्यूरेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाए। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।